Hello everyone, welcome to your current affairs class. In today's class, we are going to talk about two very important government schemes. These two government schemes were in news in the month of January 2025, and in the current SAR program of ours, here we are covering the current affairs right from January 2025 and we will be covering it till April 2026. आपके आने वाले प्रीलिम्स 2026 के लिए करंट अफेयर प्रॉब्लम ना बने, इनफैक्ट आपकी स्ट्रेंथ बन जाए, इसके लिए ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है. अपार्ट फ्रॉम द डिस्कशंस जो कि आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे मिल रही हैं, यू विल ऑल्सो बी गेटिंग आवर हैंडआउट्स जो कि हर टॉपिक से, हर डिस्कशन से रिलेटेड है ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. So the topic that we are going to talk about in today's class is government scheme. Government scheme का ये topic है. In my class we are covering the areas like government scheme से related हो गया जो भी चीजें. Then we are talking about the history. We are talking about the topics like places in news, person in news, sports. ये सारे के सारे areas जो prelims के लिए important है. These we are covering in my class. You can connect with us through all the social media platforms and on our Telegram channel. You can get the PDF of all the lectures. इस लेक्चर का भी आपको वहां पे मिल जाएगा. Now let us start with the topic जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. जनवरी 2025 का PIB क्लिप ये हमारे पास एक है जहां पर आप देखेंगे that these two news or these two you can say schemes were in news. So क्या schemes हैं ये? फर्स्ट स्कीम है हमारे पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड द सेकेंड स्कीम जो न्यूज में था दैट वाज रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. अब ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि गवर्नमेंट ने इन दोनों स्कीम्स को कंटिन्यू किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, और भी कुछ इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड इनिशिएटिव्स लिए गए और कुछ फंड को क्रिएट किया गया फॉर टेक्नोलॉजी एडिशन या अपग्रेडेशन के लिए. उन चीजों को हम इन स्कीम्स में, इस पर्टिकुलर स्कीम में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड that how one need to cover government schemes for the prelims examination, starting from the very beginning. Understand in your prelims examination, पहले तो ये बात को understand कीजिए that for our prelims examination you will always see 2026 हो या कोई भी एग्जाम हो, हम 2026 को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं. You will always find 2 to 3 questions in your prelims examination. prelims में 2 से 3 questions schemes पर रहते ही हैं. Talking about the nature of question, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, nature of question. So let me break this down for you. डायरेक्टली स्कीम पर जंप करने से कोई फायदा नहीं है, पहले तरीके से उसको समझेंगे कैसे कवर करना है, फिर उसको कवर करेंगे. So nature of scheme, if you see the questions mostly coming from this area, they are statement based questions. Statement based questions, meaning you will be finding 2 or sometimes more than 2 statements in one single question talking about one government scheme. अब उन scheme के जो statements हैं, in those statements they could be asking you about the objectives of the scheme, they could be asking you about the application part of the concept, application of concept, meaning जो objective है उसी का एप्लीकेशन पार्ट पूछ लेंगे. फॉर एग्जाम्पल एनी स्कीम रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ फार्मर. नाउ इन वन पर्टिकुलर एरिया इट इज हेल्पिंग फार्मर, लेट अस से टू डबल द फार्मर्स इनकम, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन प्रोवाइड करने के लिए, क्रेडिट फैसिलिटी के लिए उसको लगाया गया है. सो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव ना लिख करके वो उस पार्ट को लिख सकते हैं. अपने प्रीलिम्स में आपको वो मिल सकता है. यहाँ पर चेक होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ स्कीम. So it's very important therefore to first of all understand the objective in detail. जब objective समझ में आएगा, उसको break down कर पाओगे, then only you will be able to understand application part of it. Getting my point? इसके अलावा जो आपको statements पूछी जाती हैं, वो पूछी जाती हैं the specifics of one particular scheme. What are the specifics? Specifics हो गए objective के बाद जो जो elements उसका important part बनते हैं. जैसे कि आज की हम schemes cover करेंगे, I will be telling you क्या specific scheme है वहाँ पर बात कर रही हूँ. So that way if you see in our prelims examination 2 to 3 question from government scheme and statement based question on government scheme with all the statements coming from these different areas you will be finding in your examination. Right? Now there is the approach. There is a particular way to cover government scheme. Most of the students I have seen, they are simply mugging up the government schemes when they are very very close to prelims. ऐसा नहीं करना है कि prelims आने वाला है, 1 महीना पहले compilations हमने जो पूरा साल बनाई अब उसको एकदम से
रट्टा मारने लगे. You need not to muck up those schemes. If you cover government schemes in a particular fashion, in a particular manner, एक proper तरीके से करोगे तो you will be able to see बहुत सारे स्कीम्स कवर नहीं करनी होती हैं. जो सबसे ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में रही हैं आप उनको कवर करके जाइए, राइट. और उनको कुछ इस तरीके से कवर कीजिए कि अगर वो न्यूज़पेपर, अगर वो पेपर में आती हैं तो वो चाहे किसी भी डिफिकल्टी लेवल पर हो, यू शुड बी एबल टू क्लियर दोस क्वेश्चन, सॉल्व दोस क्वेश्चन. ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए. पहले तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है. हाउ वन शुड बी कवरिंग दीज 3 थिंग्स वन शुड बी कवरिंग व्हाइल talking about any of the government intervention. पहली चीज, always understand the nature of the scheme. This should be your first you can say thing that you should be noticing about any scheme. पहली चीज क्या है? नेचर का मतलब क्या है? क्या वो स्कीम तो मैं इसको यहां लिख रही हूं. क्या वो स्कीम सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है या फिर वो स्कीम सेंटर सेक्टर स्कीम है. ओके, दोनों के दोनों स्कीम्स में स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है और स्कीम का जो फॉर्मुलेशन है, इनफैक्ट जो फिनेंसेस हैं, वो दोनों में डिफरेंट हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं. तो पहली चीज तो आपको ये कवर करनी है. मेनी अ टाइम्स यू विल फाइंड इन द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑन एनी स्कीम वन स्टेटमेंट ऑलवेज टॉक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, लेकिन हम उसको पढ़ते ही नहीं है. तो जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम कवर करो, फर्स्ट थिंग यू शुड बी कवरिंग इज द नेचर ऑफ स्कीम. मेक इट अ हैबिट. Second thing, objective of the scheme. Always understand the objective. Take some time and understand the objective. Objective will always give you, so I'm writing it here. While talking about objective, understand, or while understanding objective, understand, आपको breakdown करना है objective का. breakdown से मेरा meaning ये है, understand that for what particular issue or for around what particular issue this government scheme has been, you can say, formulated. So first of all, understand the issues. First of all, understand the domain for which this particular scheme has been formulated. इसको बनाया किस लिए गया है? And how this scheme is going to sort that problem, sort that issues. While understanding the scheme in this manner, you will only be able to understand कि ये कुछ इसके loopholes अभी भी रह गए हैं. इन broader areas पर हमने target कर लिया है. ये पर्टिकुलर एरिया जो है गवर्नमेंट को और इस पर काम करने की जरूरत है, चाहे वो फंडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से रिलेटेड हो, व्हाटएवर इट इज. सो आंसर खुद से आना लग जाता है. मेंस में भी आंसर लिखोगे तो आंसर खुद से वे फॉरवर्ड खुद से आने लग जाता है. बट फॉर दैट यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम. डू नॉट मक दिस अप. इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको ब्रेक डाउन करके अंडरस्टैंड करो. द 2 schemes that we are going to talk about in today's class, I will be breaking that objective easily for you, so that आपको अंडरस्टैंडिंग आए इस चीज की कि क्यों ये गवर्नमेंट स्कीम्स को लाया गया है. देन इट विल बिकम नेचुरली इजी फॉर यू टू सॉल्व एनी स्टेटमेंट जो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव या एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव पर है. ओके, देन स्पेसिफिक्स ऑफ द स्कीम. व्हाट आई मीन बाय स्पेसिफिक्स ऑफ द स्कीम, थोड़ा तो मैंने यहाँ पे भी बता दिया, बट व्हाट आई मीन बाय स्पेसिफिक्स ऑफ द स्कीम इज अदर थिंग्स रिलेटेड टू द स्कीम, जो कि ऑब्जेक्टिव के बाद वाली चीजें और नेचर के बाद वाली चीजें. तो बाकी चीजें क्या हो गई? एनी फंड दैट हैज बीन क्रिएटेड और दैट इज पार्ट ऑफ पर्टिकुलर स्कीम. कोई फंड है, कोई पर्टिकुलर टर्म है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उस स्कीम में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है. कोई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एडिशन है, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हुआ है. वो सब चीजें कई बार आप देखोगे टेक्नोलॉजी का कोई अपडेशन होता है, उसका एडिशन होता है, तो उसके शॉर्ट टर्म्स हम वहां पर देखते हैं. दोज शॉर्ट टर्म्स यूपीएससी आल्सो आस्क्स क्वेश्चन ऑन दोस, दैट दिस पर्टिकुलर टर्म हैज रिसेंटली बीन सीन इन न्यूज़. इट्स रिलेटेड टू व्हाट? यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हेन यू कवर द स्पेसिफिक्स, यू आर टॉकिंग अबाउट the nuanced coverage. This gives you a nuanced coverage of a scheme. What is nuanced coverage? In-depth coverage. मतलब आपको एक एक चीज मालूम होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्कीम का. वो कवर करने का तरीका है ये 3 चीजें. So from today onwards, make this a habit कि पहले आप ये 3 एरियाज को कवर करेंगे. ये 3 एरियाज को इस तरीके से फोकस किया जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा स्कीम को और फिर एक एक पे फोकस किया जाएगा. ठीक है, चलो. नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर स्कीम. लेकिन ये जो स्कीम है, इस स्कीम को कवर करने से पहले, क्योंकि हमने इस लेवल पर स्कीम्स को अंडरस्टैंड किया है, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट द 2 schemes that we are going to talk about in today's class, how you can expect a question on those schemes. The first scheme that you are seeing, or the first question that you are seeing here is this particular question is made on this particular scheme,
और इज मेड अराउंड दिस स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अराउंड इसको बनाया गया है. Let me read the statements for you and let me give you some sense as to how you should be covering the scheme. It says, statement 1 says that this scheme provides coverage for the crop loss only due to the natural disasters and does not include the losses caused by the pest or the disease. दो चीजें important है. The first statement itself, okay, so let me write it here. The first statement itself is asking you to focus on two things. First, इसी कॉन्सेप्ट को तो कोई हटा ही नहीं सकता पिक्चर से. कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, मालूम ही नहीं है तो नहीं निकलेगा आंसर. कॉन्सेप्ट. सेकेंड, द लैंग्वेज ऑफ द स्कीम. सो आई एम राइटिंग इट हियर. ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द स्टेटमेंट. नाउ व्हाट आई मीन बाय लैंग्वेज ऑफ द स्टेटमेंट इज, यूपीएससी का एक पैटर्न है लैंग्वेज का. हम कोई ऐसा तरीका यहाँ पर नहीं निकाल रहे शॉर्टकट कि आप तरीका लैंग्वेज पढ़ लो और फिर सॉल्व करो. नहीं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, when you read a statement, you get a sense out of that statement. Try to make I would say easier for you from by having command over this particular part. अपने लिए चीजों को easy बनाओ इस particular part पर focus करके. लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करो. लैंग्वेज को जब आप इस स्टेटमेंट के रीड करते हो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट कुछ एरिया पर ज्यादा एम्फेसिस है, कुछ एरिया पर कम एम्फेसिस है, कुछ एरिया को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की बात यहाँ पे की जा रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट ऑल कैटेगरीज ऑफ रिस्क्स, लेटर से अभी के लिए, को इंक्लूड किया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम में. So have your command on both these things. Second, it says that scheme is applicable only to a loany farmer and a non-loany farmer cannot enroll. Now it is talking about eligibility. Who all are eligible? कौन कौन से farmers eligible हैं? तो again यहाँ पे भी focus on the language part, language of the scheme. और मैं कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं बता रही कि लैंग्वेज पढ़ लो और आंसर निकल जाता है. What I'm trying to tell you is have that kind of vocabulary with you as well, कि जब आप यूपीएससी के एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, अंडरस्टैंड किस तरीके से सवाल यूपीएससी पूछती है, उस लैंग्वेज को आप अपनी vocabulary का पार्ट बनाओगे. then it will become easy for you to first of all read the thing and then to solve the question. तो यहाँ पर वो पूछ रहा है eligibility. ठीक है, तो let me write it here. Now it is talking about eligibility. Third statement है, settling claims under the scheme requires mandatory use of crop cutting experiments for yield estimation in all states. Now there is another word mandatory being fit here in this entire statement. We have to first of all check whether this word mandatory is part of this scheme or not. तो ये specifics की बात कर रहा है. Again, fourth statement, it aims to promote innovative agricultural practices and ensure flow of credit in the agriculture sector. तो basically दो चीजें लिखी गई हैं कि ये स्कीम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बूस्ट करने के लिए या इनोवेशन को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बूस्ट करने की बात करता है, एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, फ्लो ऑफ क्रेडिट की बात करता है, जो हमेशा से हमने देखा है फार्मिंग कम्युनिटी के लिए एक प्रॉब्लम रहता ही है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. तो इन दोनों की बात करें. नाउ इट इज दिस पर्टिकुलर स्कीम इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव पार्ट. ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, या आप ऐसे समझ लो, अंडरस्टैंडिंग है तो एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. पहले हम स्कीम को पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे. करेक्ट आंसर आपको निकालना है. सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वी हैव बोथ द स्कीम्स. दोनों ही स्कीम्स न्यूज में थी, हमने दोनों का एक क्वेश्चन यहाँ रखा है, जहां पर फर्स्ट स्कीम इज अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फिर दूसरी स्कीम जो हमारी दूसरी स्कीम है दैट इज स्कीम है रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस, उससे रिलेटेड है. थर्ड, बोथ स्कीम हैव यूनिफॉर्म प्रीमियम. दोनों का कंपैरिजन है या दोनों किस तरीके से कॉमन किसी एक पर्पस के लिए, किसी एक चीज के लिए काम करते हैं, उसके ऊपर है. देन द विंड्स इनिशिएटिव, व्हाट इज दिस विंड इनिशिएटिव, उस पर भी बात करेंगे. आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है. वी विल बी सॉल्विंग दिस ऑल्सो आफ्टर हैविंग डिस्कशन on both the schemes. दोनों को पहले पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं, आपके लिए इजी हो जाएंगी. Then we have this PYQ. This is a previous year question. A previous year question. This previous year question was asked by UPSC in the year 2016. 2016 में ये सवाल पूछा गया था
जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे पूछा गया था। दिस वाज समथिंग आई वाज टेलिंग यू इन द बिगनिंग। और देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है या नहीं आप लोग खुद डिसाइड करोगे। एक बार हम पढ़ लेते हैं चीजों को। फिर स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है, अंडर दिस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे a uniform premium of 2% for any crop they cultivate in any season of the year। लैंग्वेज पार्ट जो मैंने आपको बताया, अगर आप उस पर कमांड ले लेते हो बाय सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे एरियाज मिलेंगे जिस पे फोकस करने की जरूरत है। मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। पहला एरिया जो है, अंडर दिस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम of 2% for any crop they cultivate in any season of the year. Second says the scheme covers post-harvest losses arising out of cyclones and unseasonal rains. तो क्या cyclone और unseasonal rain इसमें included है? So if you have read this particular इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, तो एक तो कॉन्सेप्ट होगा और फिर इसका लैंग्वेज जो मैंने हाईलाइट किया है आपके लिए, तो अगर आप वो कर लो तो ये क्वेश्चन इजी बन जाएगा। यू सिंपली हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्कीम। पहले जल्दी से स्कीम कवर करते हैं। द फर्स्ट स्कीम दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। क्या है ये पर्टिकुलर स्कीम? तो सबसे पहले हम कुछ स्पेसिफिक्स पर बात करते हैं। नेचर एंड स्पेसिफिक्स मैंने एक ही में लिख दिया, मैं इधर लिख भी देती हूँ ताकि डाउट ना हो जाए। नेचर ऑफ स्कीम आपके हैंडआउट में ये बिल्कुल बिगनिंग में ही मैंने लिखा हुआ है, नेचर ऑफ स्कीम। और फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर स्पेसिफिक्स हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। पहली चीज। सेकंड, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय नेचर ऑफ स्कीम। तो स्कीम का फॉर्मुलेशन, फंडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। स्टेट्स का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, वो रीजनली रहता है, कंडीशनल रहता है, वो अलग बात है। बट सेंटर सेक्टर स्कीम की डेफिनेशन से चले तो इस तरीके की वो कुछ स्कीम्स रहती हैं जहाँ पे सेंटर का ज्यादा रोल है, फाइनेंशियल भी, इम्प्लीमेंटेशन में भी और फॉर्मुलेशन में भी। स्टेट गवर्नमेंट्स प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द स्कीम, क्योंकि अप्लाई तो या इम्प्लीमेंट तो स्टेट्स में किया जाएगा। तो स्टेट में जब इम्प्लीमेंट होगी ये सेंटर सेक्टर स्कीम, तो स्टेट्स उसमें एक्टिव रोल प्ले करते हैं। कैसे? बाय सिलेक्टिंग द इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज को सिलेक्ट करके क्यों करते हैं अभी हम बात करेंगे। फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्टिंग द अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन होगा यहाँ पर, इसको देख लेंगे। ओके, सो अंडरस्टैंड वन पार्ट। When we talk about Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, this particular scheme talks about providing the crop insurance to the farmers. पहले हम ऑब्जेक्टिव्स पर ही बात कर लें ताकि आपको इस पे डाउट ना रहे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्कीम के? नंबर 1, द स्कीम प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल सपोर्ट। अब आप पहले जब ये पढ़ लोगे फिर स्पेसिफिक्स पे जाएंगे। सो द स्कीम provides the financial support to the farmer, providing financial assistance to farmers facing any sort of crop loss. We have seen time and again because of कभी rainfall ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी drought condition हो गए। There are lot of instance, अगर आप agricultural history भी इंडिया की उठा करके देखते हो तब भी इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारी ऐसी अनसर्टेनिटीज हैं when it comes to agriculture, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का या क्रॉप यील्ड क्या रहने वाला है वो कभी भी रिलायबल नहीं रहता है। अब ये रिलायबल नहीं है और ये तो एक बात हो गई कि रिलायबल नहीं है, क्रॉप यील्ड कितना है, इससे होने वाला जो डेफिसिट है। सो फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर ईयर देयर इज दिस इंसिस्टेंट रेनफॉल दैट हैज हैपेंड ऑलरेडी, क्रॉप लॉस हो जाता है। तो क्रॉप लॉस से डील करने के लिए हमारे जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो स्टॉक्स है उनको यूज करना किया जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो एक लेवल पर हम देखते हैं बिकॉज ऑफ दिस डेफिसिट विच हैज नाउ बीन क्रिएटेड बाय द क्रॉप लॉस, उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट एक स्टेप लेती है फॉर द वेलफेयर ऑफ एंटायर कंट्री, फूड डेफिसिट ना हो सके इसलिए। बट द अदर साइड ऑफ द सेम कॉइन इज रिलेटेड टू द फार्मर। व्हाट अबाउट द फार्मर? फार्मर ने तो ऑलरेडी जो है अपना इनपुट खरीदने में पैसा लगाया हुआ है, फार्मर ने उस क्रॉप को उस पूरे सीजन में उसका टेक केयर किया है। नाउ ऑल ऑफ सडन दिस वन पर्टिकुलर डे दिस इंसिस्टेंट रेनफॉल हैज स्टार्टेड टू इनंडेट द
फार्मर्स फील्ड और पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू आई मीन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप फार्मर शुड बी टेकिंग, क्योंकि फार्मर का तो कंप्लीट लॉस हो गया वहां पर. ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आई है. ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये क्रॉप लॉस से होने वाले नुकसान को डील करने के लिए ही बनाई गई है. तो इट्स बेसिकली अ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. ठीक है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे है. सेकेंड, इनकम स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प करती है. इट इंश्योर्स अ स्टेबल इनकम फॉर द फार्मर्स टू मेंटेन their interest in the farming. We have been observing this also, that when farmer is they are incurring lot of losses continuity में, मान लीजिए कुछ साल से लॉस ही हो रहा है किसी भी फार्मर फैमिली को, so they will definitely be try to switch their area of work ताकि लाइवलीहुड तो उनके पास में सिक्योर रहे. बट एक फार्मर का लॉस इस कंट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है. फार्मर्स आर बेसिकली द वंस जो हमारे प्लेट पर खाना लेकर के आ रहे हैं. द एंटायर कंट्री वी आर सेइंग, नॉट ओनली फॉर 1% और 2%, 2 लोगों की या 3 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं. सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट द सेम टाइम कि फार्मर जिन क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं और अगर उसके बाद में भी लॉस हो जाता है तो फार्मर भी स्विच ना कर ले फार्मिंग एक्टिविटीज अपनी लाइवलीहुड को लेकर के और किसी और फील्ड में ना, किसी और वर्क एरिया में वो चले ना जाए. तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना भी जरूरी है. सो इनकम, फाइनेंशियल सपोर्ट, इनकम स्टेबलाइजेशन. Third is modern practice, encouraging the use of modern agricultural practices and risk resilient agricultural techniques. It is also very important at the same time to understand कि जो भी agriculture हम perform कर रहे हैं वो quantity और quality दोनों में ही बहुत अच्छा हो. With the changing climate, और जो climate change की वजह से हम issues face अभी कर रहे हैं, challenges face कर रहे हैं, it is very important कि we should be coming up with some sort of, you can say, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कोई तरीके के ऐसे ऑप्शंस को क्रिएट करें या कोई ऐसा टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन लेकर के आए कि हमारी क्रॉप्स जो हैं वो पेस्ट रेजिस्टेंट है ना, या ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हो गई, हम उसकी तरफ काम करना शुरू करें, सो दैट जो फाइनल यील्ड हमें मिलना है वो हैम्पर ना हो. So because of changing circumstances, we also have to focus on the new technologies, new methodologies, जिससे कि crop yield ज़्यादा हो, बढ़े, increase हो. That is also one part of the scheme कि modernization करना agriculture को at the same time is very very important. It is not only important for us as a country but also for the farmer. तभी जाकर के उनके फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या जो इनकम स्टेबलाइजेशन वो ढूंढ रहे हैं उनको मिल सकेगा. Fourth important objective is institutional credit. Now this has also been seen traditionally as one of the major you can say blockage when it comes to prospering agriculture. कैसे? जब farmers को इनपुट पे पैसा खर्च करना है, जैसे कि सीड्स हो गए, इरिगेशन फैसिलिटी हो गई, मैन्योर हो गई, बहुत सारी चीजें एक फार्मर को इनिशियली तो इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं एक क्रॉप को लगाने के लिए, फिर फर्दर उसको हार्वेस्ट करते हैं वो. बट फार्मर्स कुछ अगर आप देखेंगे द वंस हु आर नॉट हैविंग बिग लैंड्स या फिर उनके पास में इतना ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, इन दैट पर्टिकुलर केस फार्मर के पास में ट्रेडिशनली आप देखो तो मनी लेंडर्स से पैसा लिया जाता था एंड देन पीजेंट्स, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप यही पढ़ते हो कि पीजेंट्स फिर मनी लेंडर से पैसा लेते थे, उनको हायर इंटरेस्ट पर पैसा चार्ज किया जाता था एंड दैट इज हाउ इम्पॉवरिशमेंट की तरफ फार्मर्स जो है, पीजेंट्स जो है वो मूव करते रहते थे. ऐसा अब ना हो, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फार्मर्स इंस्टीट्यूशनल लोन्स लें. इंस्टीट्यूशनल लोन्स मतलब बैंक के थ्रू या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जहां पर एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही जो फार्मर्स हैं उनको लोन दिया जाएगा, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि फार्मर्स के साथ कोई तरीके की एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके. ऑल्सो गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट रहता है व्हेन इट कम्स टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, है ना. कोई तरीके की सब्सिडी हो जाती है या कोई लोन आपको मिलता है तो उसमें आपको थोड़ा सा इजी लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स और ये सब हमने पढ़ी हैं जैसे. सो आपको वो सपोर्ट मिल सके बेसिकली टू बाय ऑल द इनपुट रिलेटेड टू योर क्रॉप. These are the 4 broader objectives of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. I am repeating it. First is financial support, second is income stabilization, third is modern practice and fourth is institutional credit. Now let's get back to दिस पर्टिकुलर स्लाइड जहां पर हम बात कर रहे थे. तो यहाँ पर नेचर ऑफ स्कीम क्या है? सेंटर सेक्टर स्कीम है. सेंटर सेक्टर स्कीम होने की वजह से सेंटर का इसमें जो रोल है वो मेजर रोल है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका रोल क्या है? उनका रोल है सिलेक्ट करना इंश्योरेंस कंपनीज को. ये वही इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो क्रॉप लॉस हो जाने के बाद में
फार्मर को लॉस ना हो उसके लिए उनके क्रॉप्स को इंश्योर करेंगे। आई होप नाउ इट इज मेकिंग सेंस, ठीक है। तो इन इंश्योरेंस कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये 2016 में लॉन्च किया गया था एंड दिस इज अ फ्लैगशिप स्कीम जो कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रन करती है टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू क्रॉप फेलियर। फाइनेंशियल लॉस क्यों हो रहा है? बिकॉज फार्मर ने ऑलरेडी इनपुट के लिए पैसा लगा दिया है, क्रॉप फेल हो गया तो लॉस होगा, वो ना हो सके ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, ड्यू टू पेस्ट एंड एनी सॉर्ट ऑफ क्रॉप डिजीज। इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये तीन चीजें क्लियरली स्कीम में लिखी हुई हैं। रिप्लेसेस द मल्टीपल अर्लियर स्कीम, अब ये जो स्कीम है पहले की इस नेचर की, सिमिलर नेचर की जो स्कीम्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया है विद दिस पर्टिकुलर वन एंड नाउ दिस स्कीम इज अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर स्कीम। तो ये एक इंश्योरेंस स्कीम है, क्रॉप के लिए इंश्योरेंस का स्कीम है सो दैट फार्मर्स को किसी भी एडवर्स सिचुएशन में, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से हो, पेस्ट की वजह से हो, डिजीज की वजह से हो, क्रॉप डिजीज, उनको लॉस ना हो सके, ठीक है। चलो कवरेज क्या क्या है ध्यान से समझते जाना है। ये है अब स्पेसिफिक्स जो हमने पहले बात की। तो स्पेसिफिक्स में सबसे पहले क्या है, कवरेज अंडर द स्कीम, क्या क्या कवरेज है। द स्कीम कवर्स ऑल द फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स, ऑल फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स लिखा है, एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एप्लीकेबल ऑन कंपल्शन बेसिस। देखो ये जो स्कीम है ये लागू की जाती है, एप्लीकेबल है ये कंपल्शन बेसिस पर भी और वॉलंटरी बेसिस पर भी, बट दो अलग तरीके के फार्मर्स के ऊपर। द फार्मर हु इज और हु हैज बीन प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ अ लोनी फार्मर। नाउ हु इज अ लोनी फार्मर, क्या डेफिनेशन होगी लोनी फार्मर की? लोनी फार्मर इज द वन जिन्होंने शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन जो है या क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो यूज की है, लोन लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन जो है उन्होंने लिया है, वो होंगे लोनी फार्मर्स। तो ऐसे फार्मर जो ऑलरेडी कोई तरीके का लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम the financial institution, I'm writing it here, financial institution, they have already secured it for the crop, जिस crop के लिए लिया है that should also be mentioned in the scheme। तो for the mentioned scheme, जो भी crop, जो भी mentioned crop है उसके लिए उन्होंने अगर लोन लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक हो गया तो वो होंगे लोनी फार्मर। लोनी फार्मर्स के केस में जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी डिडक्ट होकर के ही एक्चुअली ये जो लोन है वो फार्मर को दिया जाता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। सो फॉर ऑल द लोनी फार्मर्स मीनिंग द वंस हु हैव टेकन द लोन, उनके लिए ये स्कीम कंपल्सरी है, ठीक है। एंड फॉर ऑल दोज फार्मर्स जिन्होंने कोई तरीके का लोन नहीं लिया है उनको बोला गया है नॉन लोनी फार्मर्स, उनके लिए ये स्कीम जो है वो वॉलंटरी है, ठीक है। उनकी मर्जी है ज्वाइन करना है या नहीं करना, बट इफ एनी फार्मर हैज टेकन द लोन तो उनको उन केस में ये करना ही पड़ेगा। कीप दिस वन इन माइंड। नेक्स्ट इज इट आल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द रिस्क्स लाइक ड्रॉट, फ्लड्स, हेलस्टॉर्म, साइक्लोन, पेस्ट्स एंड डिजीज। तो ये जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज हैं, ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, हेलस्टॉर्म हो गया, साइक्लोन हो गया, इसके अलावा पेस्ट अटैक हो गया, कोई क्रॉप डिजीज हो गई, सबके अगेंस्ट आपको क्रॉप इंश्योरेंस देता है, प्रोवाइड करवाता है। प्रीमियम की बात कर लेते हैं। सो प्रीमियम शेयरिंग एंड पेमेंट, इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं तो प्रीमियम शेयरिंग की बात करेंगे। सो फार्मर्स प्रीमियम इज कैप्ड एट, आपको ये ध्यान रखना है फार्मर का जो प्रीमियम है वो फॉर खरीफ क्रॉप इट इज 2%, फॉर राबी क्रॉप इट इज 1.5% एंड फॉर द कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप इट इज 5%। इट इज नॉट एट ऑल यूनिफॉर्म, हॉर्टिकल्चर के लिए 5%, राबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% इसको रखा गया है। बैलेंस प्रीमियम जो है दैट इज शेयर्ड इक्वली बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कवर बोथ प्री सोइंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट रिस्क। यहाँ पर जो क्रॉप इंश्योरेंस आपको मिल रहा है वो प्री सोइंग रिस्क, सो करने से पहले, बीज लगाने से पहले के रिस्क, और पोस्ट हार्वेस्ट रिस्क दोनों को ही कवर करता है। लेट्स टॉक अबाउट द क्लेम सेटलमेंट नाउ। अगर लॉस हो जाता है उसके बाद में क्रॉप का, तो फिर इन दैट पर्टिकुलर केस किसी भी फार्मर का क्रॉप लॉस कवर कैसे होगा, मतलब उनका क्लेम सेटल कैसे होगा। क्लेम्स आर यूजुअली सेटल और क्लेम्स आर सेटल बेस्ड ऑन वेरीफाइड क्रॉप लॉस थ्रू क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, CCEs क्या है इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी, कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड लाइक YesTech इन्वॉल्विंग रिमोट सेंसिंग। अब ध्यान से इसको समझना है। एक फार्मर है, उनका क्रॉप लॉस हो जाता है,
क्रॉप लॉस तो हो गया, लेकिन अब उस क्रॉप लॉस का जायजा कैसे लिया जाए, उसको मेजर कैसे किया जाए, बिकॉज ओनली व्हेन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना लॉस हुआ है, तभी तो आप उस फार्मर को इंश्योरेंस दे पाओगे, उनको पैसा दे पाओगे, उनका लॉस ना हो वो दे पाओगे। उसके लिए वी आर यूजिंग द क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट क्या है कि मान लीजिए ये आपके पास में इंश्योर्ड यूनिट है, किसी भी एक विलेज, 2 विलेज मिला करके ये एक बेसिकली इंश्योर्ड यूनिट है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट में IU। तो इस इंश्योर्ड यूनिट में कोई भी रैंडम जो है, रैंडमली कोई भी प्लॉट्स को जो है स्टेट गवर्नमेंट लेटर से ये 4 प्लॉट्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेगी। इन 4 प्लॉट्स में कितना, ये सैंपल प्लॉट्स की तरह काम करेंगे, इसमें कितना यील्ड आ रहा है, उस यील्ड को, मतलब कि जब इन प्लॉट्स में कटिंग की जाएगी, क्रॉप कटिंग हार्वेस्टिंग किया जाएगा, तो इनमें से कितना यील्ड मिलने वाला है, उस यील्ड के बेसिस पर देखा जाएगा कि जो फार्मर क्लेम कर रहे हैं, है ना, इंश्योरेंस को अपनी क्रॉप लॉस की वजह से, वो कितना इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर उनको वो क्लेम दिया जाएगा। इसको बोला जाता है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। बट यहाँ पर जो सिलेक्शन है ये प्लॉट्स का एक इंश्योर्ड यूनिट में, वो रैंडमली किया जाता है। हो सकता है जिस फार्मर का लॉस हुआ हो वो इस पर्टिकुलर लैंड में हुआ हो। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस ये भी तो जरूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर लेवल पर जो सॉइल की कंडीशन है, या इस पर्टिकुलर रीजन में जो सॉइल की कंडीशन है, वो बिल्कुल सिमिलर हो जो आप इस तरफ देख रहे हैं, करेक्ट, ये भी सेम नहीं है। सो इन दैट केस हम क्या देखते हैं कि एक तो हम इसको मैनुअली सिलेक्ट कर रहे हैं, वी आर सिलेक्टिंग दिस प्लॉट्स मैनुअली। सेकेंड, द एडिफिक फैक्टर्स आर नॉट सेम, मीनिंग जो सॉइल की कंडीशंस हैं, सॉइल रिलेटेड कंडीशंस है, सॉइल का मॉइस्चर, सॉइल का टेक्सचर, द एरिएशन इन द सॉइल इटसेल्फ, पीएच ऑफ द सॉइल इटसेल्फ, राइट, ये सब चीजें सेम नहीं है, जिसकी वजह से जो हमें आउटपुट यहां से मिलेगा, जो आउटपुट इस इन सैंपल प्लॉट से आपको मिलेगा, वो डेफिनेटली वो सेम तो नहीं होगा जो आपको यहाँ मिलेगा, इस पर्टिकुलर एरिया में मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो वेरिएशन तो आता है। सो बिकॉज ऑफ दिस मैनुअल सिलेक्शन of the plot, and second the subjectivity of you can also say the calculation method, जो भी जिस तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे हो, subjective to every state, किस तरीके से उसको सिलेक्ट किया जा रहा है, किस तरीके से आउटपुट है, वेरिएशन इन टोटल क्रॉप यील्ड कितना है, उसकी वजह से बहुत सारे एरर आने के चांसेस है, राइट। So now what we are trying to do, we are trying to use technology here. What sort of technology intervention we are talking about? We are talking about YesTech. What is YesTech? YesTech का मतलब है कि yield estimation system। मतलब yield estimation system का क्या मीनिंग हो गया, ये particular method के through what we are trying to do, we are trying to have the you can say the satellite image, the satellite image. So remote sensing को use किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग से क्या होगा, आप सैटेलाइट इमेज लेंगे उस पूरे फील्ड की, जैसे ये पूरा फील्ड हो गया, इस पूरे रीजन का जहां लॉस हुआ है और जहां नहीं हुआ है, दोनों का ही, तो सैटेलाइट इमेजरी को आप यूज करेंगे। सैटेलाइट इमेजेस से आप जो भी आपकी जो सैटेलाइट है जो उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है ग्राउंड पर, वहां पर वो डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन को आपको बता देती है, राइट, क्लाउड कवर कितना है उसको आपको बता देती है। दैट मीन्स आपके जो वेदर कंडीशंस हैं उसमें तो ये बहुत अच्छा आपको हेल्प करती है, वेदर कंडीशंस। सो दिस टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हैज वन मेजर ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज टू अंडरस्टैंड और टू डॉक्यूमेंट, बेसिकली, लेट मी राइट इट हियर, द टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, this technology intervention basically is going to help us in 2 ways. First, it will help us understand the weather conditions, not only understand but also help us document the weather condition and also the edific factors, meaning the soil conditions, जो भी soil की conditions हैं उसको भी understand करने में ये हमें help करती है। By having this kind of database available with us or this kind of information available with us, हमें हर टाइम सॉइल की कंडीशन जो डायरेक्टली क्रॉप हेल्थ को अफेक्ट करती है, वेदर कंडीशन जिससे हमें ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट, मान लीजिए बहुत हैवी रेनफॉल हो गया, उसके पहले अगर ऐसा पर्टिकुलर मौसम था, इस तरीके का मौसम था, तो क्रॉप यील्ड कैसे हो सकती है। वी कैन एक्चुअली बी इंटरपोलेटिंग ऑन द यील्ड, तो हम यील्ड को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम यील्ड को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्शंस उसके देख सकते हैं, इंटरपोलेट उसको कर सकते हैं। सो इन द YesTech, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, we are trying to bring together
बोथ ये जो CCE है, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट तो होगा ही होगा, बट अलॉन्ग विद दैट हम ये टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन को यूज करके इसको ज्यादा से ज्यादा एरर फ्री करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्लेम्स को ज्यादा रियल, यू कैन से रियलिस्टिक टाइम में उसको जो है वो या रियलिस्टिक मैनर में उसको सेटल डाउन किया जा सके। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। The scheme aims to pay the claim within 2 months of the harvest, and it also encourages the use of technology to improve transparency and speed. तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी और स्पीड से इन दोनों चीज़ों को यूज करके क्लेम को सेटल किया जा सकता है मच मोर फास्टर मैनर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द इनोवेटिव फीचर। तो इनोवेटिव फीचर में क्या है? इंक्लूजन ऑफ ईएसटेक, अभी हमने पढ़ा। यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड विंड्स क्या है? वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम। ये जो दोनों सिस्टम हैं ये मॉडर्नाइज करते हैं हमारे जो भी क्लेम्स हैं उसको जल्दी सेटल करने में, डॉक्यूमेंटेशन करने में ऑफ द वेदर एंड एज वेल एज द सॉइल कंडीशन को, एंड एक ज्यादा बेटर वे में क्लेम को वही जो हम कह रहे थे सेटल करते हैं। सो येस्टेक क्या है? इट यूजेस द रिमोट सेंसिंग टू कॉम्प्लीमेंट और रिप्लेस द मैनुअल क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन। तो ऐसा नहीं है कि हम येस्टेक यूज करेंगे तो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल ही हम खत्म करें। हाँ, इन फ्यूचर हो सकता है कि हम पूरे तरीके से रिमोट सेंसिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो, बट अभी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू थ्रू दिस येस्टेक, वी आर यूजिंग बोथ द टेक्नोलॉजीज। तो एक हाइब्रिड तरीके का मेथड हम यूज कर रहे हैं। सेकेंड इज द विंड्स में क्या है? इट इज ऑल अबाउट द वेदर को अंडरस्टैंड करना, वेदर के रिलेटेड एक डेटाबेस को जनरेट करना। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? हियर वी आर गोइंग टू यूज ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एंड ऑल्सो ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एंड ऑटोमेटिक रेन गॉज इसको यूज करने वाले हैं। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन वी विल बी using at block level and rain gauge at village level, and इनका जो इंटेंसिटी है, मतलब नंबर्स जो हैं ऑफ बोथ दीज सिस्टम्स, बोथ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, जो रेन गॉज इंस्ट्रूमेंट है और आपका जो वेदर इंस्ट्रूमेंट है, इनका इंटेंसिटी इंक्रीज करने की बात की गई है इन दिस रीसेंट अपडेशन जो जनवरी 2025 में हुआ है। दीज टू थिंग्स दैट यू आर सीइंग हियर, दीज टू टेक्नोलॉजीज, येस्टेक as well as the winds, these have been introduced by the government of India in the year 2023 already. But now in the recent updation in January 2025, what we have done, we have tried to expand their ambit of influence और their area of influence, जैसे कि रेन गॉज और आपके वेदर स्टेशंस को इंक्रीज करने की बात की जा रही है। What is going to happen if we are going to increase these stations? ज्यादा एक्यूरेट डेटा हमें मिल सकता है। जितने कम डिस्टेंस पर वेदर स्टेशंस या रेन गॉज रहेंगे उतनी एक्यूरेसी से वेदर मेजरमेंट्स या वेदर चेंजेस में माइन्यूट वेरिएशंस को एंड रेन पैटर्न को कब ज्यादा हो रही है कब कम हो रही है बिल्कुल उसको नुआंस लेवल पर हम उसको चेक कर सकते हैं। एंड वी already know this, ये हमको मालूम है that when it comes to agriculture in India we are heavily dependent on monsoon and our rainfall, so we cannot simply ignore this part. उसके लिए we are also now having one sort of fund for innovation करके एक अभी फंड जो है 2025 जनवरी में ही उस फंड को भी साथ ही में लॉन्च किया गया है, फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जिसमें कि इस तरीके से ऑलरेडी जो हमने टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन किया है उसको और एक्सपैंड किया जाएगा एंड एट द सेम टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ भी वी आर ऑल्सो डाइवर्टिंग द फंड्स, वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ फंड फॉर फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन दिस। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स? नाउ आई एम श्योर आपको बेनिफिट्स क्लियर होंगे। क्या बेनिफिट्स हैं स्कीम के? टाइमली क्लेम सेटलमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। देन वी विल बी हैविंग रिस्क मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, which means that promotes the strategies to reduce the risks and diversify the crop types. Creditworthiness and access maintains the farmer ability to secure formal credit. तो credit मिल जाएगा securely या easily. So in that case, farmer will also be having confidence in farming itself. तो उनका livelihood भी secure रहेगा और हमें जो आउटपुट है वो भी मिलता रहेगा। तो फार्मर के लिए भी बेनिफिशियल है, एज अ कंट्री इफ वी सी दोनों ही लेवल्स पर इट इज वेरी मच बेनिफिशियल। ओके, now let's quickly talk about restructured weather based crop insurance scheme. In the similar fashion we are going to quickly revise this one. So what is this particular scheme? सबसे पहले तो this scheme is a center sponsored scheme. It is a centered sponsored scheme. So unlike the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, which is a center sector scheme, this particular scheme that is
RWBICS scheme, this particular BCIS scheme, this particular scheme is a center sponsored scheme. Both the schemes were launched in the year 2016. Remember this. ये दोनों की दोनों schemes 2016 में launch की गई थी, but ये अलग अलग time पे launch की गई. Now both the schemes are different. एक नहीं है ये, दोनों different हैं, but are very closely you can say linked to the very you can say topic of farmer welfare. Farmer welfare से दोनों closely related हैं. कैसे? What is the scheme? This particular scheme is the weather index based crop insurance scheme. ये भी crop insurance scheme है, but it is weather indexed based crop insurance scheme. To put it in simple words, when we were talking about Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, we were settling down those claims based upon the crop yield. जो भी crop yield था, जो sample plots हमने देखे, उसमें हमने crop cutting experiment के through या ESTEC के through we were settling down the claims based upon the crop yield, but here we will be settling down the claims in case of RWBCIS. Here we will be settling down the claims. जो भी financial support provide किया जाएगा, that will be weather based. ये yield based है, yield index है, ये weather index है. So weather based parameters will be taken into use here. ठीक है कि वेदर के चेंज होने की वजह से जो क्रॉप लॉस हुआ, एक्सेसिव रेनफॉल हुआ, कम रेनफॉल हुआ, सूखा पड़ गया, हेल स्टॉर्म आ गया, व्हाटएवर इज द सिचुएशन, इज अ कंडीशन, based upon that we are going to see the loss of the farmer here. Understand, because the term weather is a more local term as compared to climate. ठीक है, एक स्पेसिफिक लोकेलिटी, एक स्पेसिफिक रीजन के जब आप क्लाइमेट की बात करते हो तो उसको क्लाइमेट नहीं कहते, तो हम उसको वेदर कहते हैं. सो देयरफॉर दिस वेदर बेस्ड इंडेक्स इज टॉकिंग अबाउट मोर लोकलाइज्ड अप्रोच और मोर लोकलाइज्ड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर. ठीक है, what is its objective? To protect the farmers from any sort of financial loss due to the bad weather, जैसे abnormal rainfall या फिर टेम्परेचर चेंज. हाउ डज इट वर्क्स डिफरेंटली फ्रॉम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? इंस्टेड ऑफ क्रॉप यील्ड, मैंने आपको यहाँ बता दिया, वहां पर क्लेम सेटल होंगे क्रॉप यील्ड पर. इट यूजेस, ये स्कीम यूज करती है वेदर पैरामीटर्स को. ये क्रॉप यील्ड नहीं देखेगी, ये वेदर के बेसिस पर चेक करेगी. और होता क्या है कि आप जब भी कोई इंश्योरेंस स्कीम की बात करते हैं, सो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स सेट. ठीक है, इस केस में भी क्या होगा? सो फॉर एग्जाम्पल जो वेदर पैरामीटर्स हैं उनको देखा जाएगा और यहाँ पर क्रॉप को 3 डिफरेंट स्टेजेस या डिफरेंट साइकिल्स में डिवाइड किया जाएगा. बिफोर सोइंग, मैच्योर पीरियड ऑफ द क्रॉप या क्लोज टू हार्वेस्ट जब रहेगा, सो दैट एंटायर लाइफ ऑफ द क्रॉप विल बी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, इनटू पार्ट्स. नाउ द वेदर कंडीशंस इन डिफरेंट साइकिल्स ऑफ दिस क्रॉप विल बी ऑब्जर्व्ड. अब वो ऑब्जर्व करने के बाद में जो भी वेदर पैरामीटर्स रहे, wind speed रही, humidity रही, temperature रहा, whatever it is, all those things will be observed and then those things will be parallelly checked with this particular scheme itself. अब इस स्कीम में जहां पर आपके क्लेम्स ट्रिगर हो जाएंगे, मीनिंग जहां पर जितना स्टैंडर्ड वेदर कंडीशन हमने सेट किया था, मान लीजिए कि टेम्परेचर एक XYZ डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए था, बट इस सिचुएशन में वो उसके ऊपर चला गया, है ना, ह्यूमिडिटी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर चली गई. सो इन दैट पर्टिकुलर केस वो जो आपके पास में जो आप क्लेम करोगे फाइनेंशियल लॉस, वो सारे एरियाज ट्रिगर हो जाएंगे. वो यही लिखा गया है, वो सारे एरियाज ट्रिगर हो जाएंगे. बेस्ड अपॉन दैट आपका क्लेम कैलकुलेट किया जाता है. यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आपका लॉस कितना हुआ है वो देखा जाएगा with the help of that divergence, कितना diverge हुआ, the values that we are getting, right, the standard values that should be there, based upon that divergence we will be seeing how much loss a farmer has actually incurred. So it is all about the weather parameters. वेदर में डाइवर्जेंस की वजह से या वेदर के जो पैरामीटर स्टैंडर्ड होने चाहिए उससे कितना डाइवर्ट ये अब हो गया, जिसकी वजह से क्रॉप लॉस हुआ, यील्ड में लॉस हुआ, वी आर फोकसिंग ऑन दैट पार्ट. ओके, सो कवरेज of under this particular scheme, the scheme covers the crop loss occurring due to the measurable and quantifiable weather perils notified by the state government. ध्यान रखेंगे स्टेट, क्योंकि हमने पहले ही बात किया, it is a center sponsored scheme, not a center sector scheme. Major insured weather perils include, कौन कौन से weather perils के basis पर यहाँ पर coverage है? It includes drought, it includes excessive rainfall, frost, unseasonal rainfall, hailstorm and high wind speeds. Lot of other factors are also there. हेलस्टॉर्म हमने क्वेश्चन एक देखा था, वहां पे अनसीजनल रेनफॉल एंड हेलस्टॉर्म ही आई थिंक मेंशन था. क्वेश्चन देख लेंगे अभी हम.
But apart from that, we are seeing that there are other lot of weather conditions that have been introduced here. Coverage is designed for the entire और partial crop life cycle. Life cycle जो हमने डिस्कस किया, या तो सोइंग से हार्वेस्ट तक, या तो कोई एक मिडल का कोई साइकिल रहा है क्रॉप का, मेच्योरिटी का, वहां लॉस हुआ, सो दे विल बी कवरिंग it in both the ways, दोनों तरीके से कवर किया जाएगा. What is the methodology we are going to use? Claims under this particular scheme, जो farmers के claim है loss के, they are calculated based on the deviation of actual weather data. I hope now we are clear at this point. From the predefined trigger parameters, whatever is the standard, whatever should be the standard value related to those weather parameters, and what actually we are getting on ground related to that particular scheme. और उसमें भी हम उस क्रॉप के साइकिल को डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट में, जितना डेविएशन है उसके बेसिस पर लॉस को मेजर किया जाता है, तो डेविएशन से इसको हम मेजर करते हैं. ठीक है. टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, विंड्स, जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन यहाँ किया गया है, दैट इज थ्रू विंड्स, विच सिंपली मीन्स वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस automatic weather stations and automatic rain gauge station at both the block as well as the village level respectively, जहां से हम weather के जो पैरामीटर्स हैं उनको मेजर करेंगे, and therefore we will be able to see the deviation. Okay. Now, how does the scheme operate? We have covered this one also. Claims are triggered for all the farmers. Here, understand, all the farmers under this scheme is covered. This is very important part. Write it down. यहाँ पर चाहे लोनी फार्मर है चाहे नॉन लोनी फार्मर है, कोई ऐसी कैटेगराइजेशन नहीं. यहाँ पे everyone is basically covered under this particular scheme. Everyone is eligible here. And what are the benefits? It reduces the need for individual crop yield assessment. आपको particular crop का assessment नहीं करना पड़ता कि एक ही crop में कितना loss है वो देखेंगे. It also speeds up the compensation, and this complements this particular scheme that we are discussing right now. Also complements the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, especially for weather related risk. I hope अब आपको समझ में आया that how both the schemes are working towards a farmer welfare. But when you talk about this particular one, that is जो हमारे पास ये वाली particular scheme है RWBCIS, ये weather based risks को लेकर के जो financial losses claim करने की हम बात कर रहे हैं उससे related. This is more localized in nature. इसमें winds technology का ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, रेन गॉज और वेदर गॉज. Whereas when you talk about प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, it's sort of umbrella scheme, जहां पर हम क्रॉप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, मल्टीपल फैक्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं. वहां पर भी हम विंड्स और साथ साथ में जो हमारा येस टेक है, वी आर यूजिंग दैट, रिमोट सेंसिंग को यूज कर रहे हैं. रिमोट सेंसिंग से हम आपके जो एडिफिक फैक्टर्स हैं, जो आपके बेसिकली सॉइल कंडीशंस हैं एंड बाकी के जो आपके वेदर कंडीशंस हैं उनको हम मेजर कर रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं. दैट इज हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ वेरिएशन इज नाउ हैपनिंग, क्रॉप यील्ड कैसे वेरी कर रही है, एंड क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट फिर हम वहां पर इंक्लूड करते हैं साथ में, एंड देन वी सी द सेटल डाउन द क्लेम बेसिकली. ठीक है. What are the benefits of this particular scheme? Weather based crop insurance, faster claim settlement, regional level पर भी है ये, technology adoption, winds को हमने use किया है, expanded coverage and crop resilience as well. Now let us quickly, before we go to the question again, let us quickly look at both the schemes और उनको comparison देख लेते हैं. When we talk about प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, so this is a crop yield losses based on method, whereas when you talk about restructured weather based crop insurance scheme, here weather based or weather parameter deviations are seen. कहने का मतलब क्या है, that in this particular one we will be settling down the claims based upon the crop cutting estimation, crop cutting estimates along with the yes tech, okay, remote sensing and all. Whereas in this case the claims will be settled based upon the weather index, the deviation in the, so here we are talking about the deviation in the weather parameters between the standard ones जो कि आपके ऑलरेडी इस इंश्योरेंस या स्कीम का पार्ट है, versus that of what you see on ground. ओके, इसको कंपेयर करेंगे. नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क मिटिगेशन. दिस स्कीम हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल रिस्क. ये इनकम स्टेबलाइजेशन के लिए जरूरी है, ज्यादा लोकलाइज नेचर में भी है, ये इसका नेचर है. इट यूजेस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, हाइपर लोकल वेदर डेटा, दैट मीन्स winds, which also has got advanced rain gauge system and also weather system. Automatic weather system, not advanced. Automatic weather system and automatic rain gauge. Then combined budgetary outlay
एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट। सो ये दोनों ही स्कीम्स का एक कंपैरिजन है। सो यहाँ तक तो हमने स्कीम्स कवर कर ली। नाउ लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चंस हम करेंगे जिसमें से कि दिस इज द फर्स्ट वन। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, the statement 1 says this is regarding Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. The scheme provides coverage for the crop loss only due to the natural disasters and does not include the losses caused by pest and disease. This is absolutely wrong statement. We have just read about this one. So यहाँ पर कवरेज मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक्स की जो हमने बात की। नेक्स्ट इज द स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली टू द लोनी फार्मर एंड नॉन लोनी फार्मर्स कैन नॉट एनरोल। दिस इज नॉट द केस, दे कैन ऑल्सो एनरोल। इन फैक्ट दिस स्कीम इज कंपल्सरी, दिस स्कीम इज कंपल्सरी फॉर लोनी फार्मर्स। नॉन लोनी जो है वो भी कर सकते हैं, बट इट इज कंपल्सरी फॉर द लोनी वंस। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज दिस स्कीम इज एप्लीकेबल ओनली टू नो, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। Third, settling the claims under the scheme requires mandatory use of crop cutting experiments for yield estimation in all these states. अब mandatory नहीं है, we are moving towards the yes tech जो हमने remote sensing की बात की। दूसरा, सब स्टेट्स में मैंडेटरी नहीं है। अब कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रॉप एस्टिमेशन की तरफ काफी स्पीड से बढ़ रहे हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज दैट वे इज ऑल्सो रॉन्ग। द फोर्थ स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना aims to promote the innovative agricultural practices and ensure the flow of credit. तो लोनी नॉन लोनी देखा हमने, तो this is all part of the scheme. So that is how the statement 4 is correct. This is again part of objective. We have read about this one in the objective part of the scheme. That makes only fourth statement correct. So C is the right answer here. ठीक है? Okay. Now let's talk about this particular question. अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं। मैं सिर्फ आपको आइडिया दूंगी ऑप्शंस के थ्रू, आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड्स कॉम्पनसेशन बेस्ड ऑन एक्चुअल यील्ड लॉस असेस्ड थ्रू क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड। ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो मैनुअल मेथड्स पहले से यूज होते आ रहे हैं प्लस जो टेक्नोलॉजी बेस्ड यानी कि येस टेक, ये दोनों ही यूज किए जाते हैं किसमें? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इज इट करेक्ट और नॉट? प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड स्टेटमेंट, द RWBCIS compensates the farmers based on deviations in the predefined weather parameters such as rainfall and temperature. So it says कि जो हमने सेकंड स्कीम पढ़ी रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड जो क्रॉप एस्टिमेशन क्रॉप लॉस के लिए जो एस्टिमेशन स्कीम है, ये कॉम्पेंसेट करता है फार्मर्स को बेस्ड ऑन द डेविएशन इन द प्री डिफाइंड वेदर पैरामीटर्स। एक ऑलरेडी सेट ऑफ पैरामीटर्स है और फिर एक डेविएशन आपने उसमें देखा, बेस्ड अपॉन दैट डेविएशन कितना उसमें फर्क है एक्चुअल ऑन ग्राउंड वैल्यूज एंड जो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू सेट की हैं सच एज रेनफॉल हो गया एंड टेम्परेचर हो गया, वेदर गॉड से जिसको मेजर किया जाएगा। So is it correct or not? So it is basically talking about winds technology. So क्या ये हमारी इस स्कीम जो ये दूसरा स्कीम हमने पढ़ा उससे रिलेटेड है कि नहीं? Please comment it down in the section in the comment box. Third says both the schemes have a uniform premium rate for all the crops irrespective of crop type or crop season. क्या जो प्रीमियम रेट है वो यूनिफॉर्म है और क्या हमने इसको डिवाइड किया इनटू खरीफ सीजन, खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप और प्रीमियम रेट क्या हमने एक ही पढ़ा या फिर अलग अलग पढ़े? ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज राइट डाउन द प्रीमियम रेट स्पेसिफिक टू ईच वन टाइप ऑफ क्रॉप। ठीक है, इसको भी आंसर करेंगे। एंड फोर्थ, द विंड्स इनिशिएटिव अंडर दीज स्कीम्स एम्स टू एनहांस हाइपर लोकल वेदर डेटा कलेक्शन थ्रू ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस एंड रेन गॉज। तो ये कहता है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एंड ऑटोमेटिक रेन गॉज को यूज करके जो विंड्स इनिशिएटिव है वो हाइपर लोकल वेदर डेटा प्रोवाइड करता है। हाइपर लोकल मीनिंग दैट इन अ पर्टिकुलर रीजन, जैसे मैंने आपको बताया द डेंसिटी ऑफ दीज stations are more, we will be getting even more clearer you can say information on the weather, on बाकी के जो weather conditions है, rainfall हो गया, ये सब चीजों के ऊपर, तो which is a good thing। तो क्या ये प्रोवाइड करवाता है कि नहीं? We have just discussed that part as well। ठीक है,
सो ये मैं टिक यहाँ से हटा देती हूँ. You have to actually see which of the following statement is correct. Choose the correct one from the 4 given options here. Right. The third question that we have with us is a previous year question actually. Now this question is should be much easier to you. ओके, तो क्वेश्चन में बोला गया है अंडर दिस स्कीम, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड है. इट सेज दैट दिस स्कीम, इन दिस स्कीम फार्मर विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% of any crop. We have just discussed this particular part, so please comment down, is this statement correct or not? Third question, ठीक है. And the second statement says this scheme cover the post harvest losses arising out of cyclones and unseasonal rain. तो अनसीजनल रेन और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या कवर करती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? यस और नो? प्लीज राइट इट डाउन. तो फाइंड द करेक्ट आंसर एंड देन गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन ओनली. आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स and then the ones who will be giving the correct answers will be definitely announcing your name in my next class. Okay, so do participate in the class discussion. The PDF handouts or the PDF notes of this class you will be finding on our Telegram channel. तो Telegram channel से इसका detailed explanation, जो questions हमने किए उनका answer पर पहले खुद solve कीजिए, फिर उसका answer और explanation मिल जाएगा along with what has recently been added to already these two schemes, and ये दो schemes में क्या क्या चीजें हैं, सारे feature जो हमने यहाँ पढ़े वो handout में भी है. Okay, so ये handout को अपने revision sheet की तरह use कीजिए और इसको final preparation के लिए आप finalize कर लीजिए. So with this I am signing off. We will be meeting in our next discussion with the new area. Till then, keep revising. Thank you.